Hare Krishna, Lata Mataji. Sorry, you just joined online. Please repeat. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet nashta prayeshva bhadreshu नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः Hare Krishna. So, does anybody remember what was the discussion last week? Or what was the topic? Sorry, Prabhuji. Puranjan and Puranjani. Yes. और थोड़ा बताएं. How Puranjan Maharaj made his intelligence his wife. So he was actually captured. The intelligence took over him, and then was doing all the lustful activities in his life. And Narad was explaining this to Maharaj. ठीक है, कोई और बताएं. और कौन थे पिछली बार? Subtle body and हाँ जी, सटल बॉडी. और एक बार किसी ने पूछा कि पांडव कौन थे, तो वो पंजाबी से पूछा उन्होंने, तो उन्होंने पांडव 5 भाई थे. तो उसने कहा कौन कौन थे? उन्होंने कहा एक युधिष्ठिर थे, एक भीम थे, एक और थे, एक और थे, एक का नाम मैं भूल गया. नहीं, पिछली बार का हमारा टॉपिक बहुत ही सीरियस टॉपिक था. उससे पिछले चैप्टर में पिछली बार हमने बताया था कैसे जो पुरंजन थे. यस प्रभु जी. Okay, sure. Yes. We'll mix it up. Some people requested English. हिंदी किसको नहीं आती है पहले मुझे पता लग जाए. Okay, you don't know in हिंदी. और किसको नहीं आती हिंदी? Okay, ठीक है, कोई बात. We'll mix it up. So the topic that we were discussing last time was Puranjan. Puranjan is called soul. And Puranjan was a person who was looking for sense enjoyment, and he went everywhere in the universe. And finally, he met Puranjani, whom he got attracted towards. And then he spent many years enjoying with her in their each other's association. And then came a time when Puranjan was taken over by the old age. And when he was being taken away by the Yamduts, then he was remembering Puranjani. He was remembering his wife. And because he was remembering his wife, then in the next birth, Puranjan became a female. She took birth, that person took birth as a female.
right? She became daughter of Vidarbha Naresh. He became daughter of, right? And then she got married to Malyadhvaj, a very renowned king who was a great devotee of Krishna. And then when the old age came for this couple, then King Malyadhvaj, he decided to go to the forest to perform austerity. And when he went to the forest, there one day he was sitting, एक दिन वो ध्यान लगा रहे थे, भगवान के बारे में सोच रहे थे, एंड थ्रू दैट उन्होंने तप के योग से अपने श्वास को जीत लिया था. He had controlled his breathing through the severe austerity and he connected himself with the Supreme Lord. And in that posture he left his body. उन्होंने शरीर को छोड़ दिया. And when his wife came to massage his feet because she used to serve him, then she realized इसमें तो प्राण ही नहीं है. The body has no soul. The body has no movement. And then she started crying. And then she created, उन्होंने एक चिता बनाई. And she put the body on the fire. उसके ऊपर रखा उन्होंने. और जब वो अंतिम संस्कार करने के लिए वो उसमें खुद एंटर करने वाली थी, फिर वहां पे एक पर्सनालिटी अपीयर होती है. An old personality appeared there whose name was Avignata. Avignata is none other than the Supreme Lord, भगवान स्वयं. अब भगवान वहां पे आते हैं and भगवान tells her, he was an old man. He asked her, first he asked her, why are you crying? आप रो क्यों रही हो? वो बताती है कि मेरे पति ने शरीर छोड़ दिया है और मैं इनके दुख में out of separation I'm crying. But then he told her, he reminded her, he said, no, you are not woman. In the previous life you were this. And I was your friend. I was always with you. And you used to come to me whenever you had problems and I used to help you. I used to guide you. But you got so much entangled into sense enjoyment. आप इंद्रिय भोग में इतने लग गए कि आपने मुझे भूल गए. And when you forget Krishna, कुछ समय के लिए वो आपको छोड़ देते हैं. He lets you go. आपको enjoy करना आप enjoy कीजिए, वो आपको छोड़ देते हैं. So that's what he's saying, that I did not interfere in your life. Because remember, we have a small independence. हम सबके पास एक थोड़ी सी स्वतंत्रता है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं. भगवान इंडिपेंडेंट है, हम भी इंडिपेंडेंट हैं, बट वी आर अंडर हिम. आप समझ रहे हो? जैसे भगवान ब्रह्मांड के नायक है, आप अपने घर के नायक हो. यू हैव द फ्रीडम. आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, आपको लंच में क्या खाना है, यू डिसाइड दैट. यू हैव दैट लिटिल फ्रीडम. उस फ्रीडम को अगर आप मिसयूज करते हो, इफ यू मिसयूज दैट फ्रीडम फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेम थिंग हैपेंड. तो वही अविज्ञाता ने उनको कहा कि मैं आपका दोस्त था, आई वॉज योर फ्रेंड, आई वॉज हेल्पिंग यू ऑल द टाइम, बट यू गॉट सो मच एंटेंगल्ड इनटू, आप इंद्रिय भोग में इतना लग गए कि आपने मुझको भुला दिया. यू फॉरगॉट मी. बट आई हैव कम हियर टू गाइड यू नाउ बिकॉज you belong to this personality who is a great devotee of Krishna. That is why. Because the husband was great devotee of Krishna, the wife got enlightenment. पत्नी को भी कृपा मिल गई. तो ये फायदा होता है, दोनों में से एक अगर भक्त है तो दूसरे का भला ऑटोमेटिकली हो जाता है. Somehow or other. So that's exactly what happened. फिर उनको उन्होंने बताया विज्ञाता ने कि नहीं, तुम you are a soul. You are not a woman, nor a man. You are an independent soul and you are conditioned. And why you are conditioned? Because of your desires to enjoy. And as per your desires, you get a body. अभी आप जैसा डिजायर कर रहे हो, आपको नेक्स्ट बॉडी वैसी मिल जाएगी. You got this body because in the previous life you desired. And another important thing that we discussed last time, this is very important, we all need to understand. जो human birth है,
हम लोग को कहा जाता है फ्रूटिटिव वर्कर्स। फ्रूटिटिव वर्कर्स क्या होते हैं? जो लोग फल के लिए कार्य करते हैं। हम लोग कुछ ना कुछ फल के लिए कार्य करते हैं, लेकिन भगवान ने तो कहा है कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा आप मत कीजिए। यू ओनली हैव अ राइट टू परफॉर्म द एक्शन, डोंट आस्क फॉर फ्रूट, बट वी आस्क फॉर फ्रूट। And because of that, we get into this cycle of birth, death, old age, disease, and then transmigrate into different bodies. तो भगवान कपिल देव ने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है, जस्ट सो यू अंडरस्टैंड बिफोर गेटिंग दिस ह्यूमन बॉडी वेयर यू वर। भगवान कपिल देव कहते हैं अधस्तान नरलोकस्य यावतिर्यातनादया क्रमशः सम अनुक्रम पुनरअत्र आवृजेत शुचि। श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो 30th चैप्टर वर्स नंबर 34। तो भगवान ये कह रहे हैं, भगवान कपिल देव इज सेइंग दैट एज ए ह्यूमन बीइंग आपने भी जितने भी काम किए हैं, एट सम पॉइंट यू हैव टू लीव द बॉडी। व्हेन यू लीव द बॉडी, जब आप शरीर को छोड़ते हैं, यमदूत आपको लेके जाते हैं। यमदूत आपको लेके जाते हैं एज पर योर एक्शंस इन दिस लाइफ। आपको भोग भोगना पड़ेगा, यू हैव टू पे बैक। और अधस्तान नरलोक से मतलब इस नरलोक के नीचे जितने भी हेलिश प्लैनेट हैं, 7 प्लैनेट हैं इसके नीचे हेलिश प्लैनेट, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। तो इन 7 प्लैनेट में अलग अलग तरह की यातनाएं दी जाती हैं। तो वो कह रहे हैं यावत तेरी यातना दया, जितनी भी आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए उतनी आपको पनिशमेंट, यहां भी तो पनिशमेंट मिलती है ना। यू ऑल्सो गेट पनिश्ड हियर। A small offense, you get a fine. A bigger offense, you get a fine and demerit points. A bigger offense, your license suspended. A bigger offense, your car taken. A bigger offense, you can't get insurance. Another bigger offense, you are put into jail. Another bigger offense, you are hanged till death, etc., etc. So similarly, the punishment that are not sufficient because you have committed so many sins, you are sent to the lower planetary systems. There you go through all the punishments क्रम से सम अनुक्रम में। भगवान कह रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट इन सीक्वेंस वे, उसमें कोई चालाकी नहीं चलेगी, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, उसमें ये नहीं कि प्रभु जी लाइन टाप के यहां चले जाएंगे उसमें कोई लाइन टापना नहीं है पूरा परफेक्ट ऑर्डर में आपको सताया जाएगा। कहते हैं कुंभी पाक एक नरक है। अभी 5th कैंटो हम शुरू करेंगे अगले महीने, उसमें नरकों के बारे में डिस्क्रिप्शन है। हेलिश प्लैनेट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड देयर। 32 प्रकार के नरक होते हैं। कुंभी पाक एक नरक है, उसमें तेल की कढ़ाई में उबलते हुए तेल में आपको डाला जाता है, अच्छे से फ्राई किया जाता है आपको। जो आपने चिकन फ्राई ट्राई किया है, जो आपने मटन फ्राई ट्राई किया है, वो फिर सब आपका ट्राई होगा वहां पर। राइट, यू आर गिवन दैट, या अपना शरीर आपको मिलता है। कुछ लोग कहते हैं किसने देखा है, किसको पता लगेगा? नहीं, ये तो जब गुजरोगे तब पता लगेगा। राइट, यहीं पर ही आप देख लो, यहीं पर आप कहते हो छोड़ो यार क्या करना है, आई डोंट केयर, टू हेल्प विद द पुलिस। आप ट्रैफिक लाइट क्रॉस कीजिए, आपको पता लग जाएगा। राइट, सेम लॉ अप्लाई होता है। तो उसके हिसाब से जीवात्मा को सारे कष्ट भोग करके देन अगेन यू गेट द ह्यूमन बर्थ। सो यू अंडरस्टैंड how much value is given to this human birth, and if we waste this human birth just for sense gratification, सिर्फ इंद्रिय भोग में शरीर को अगर खत्म कर दिया तो अगली गति क्या होगी? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मनुष्य जन्म पाया, भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म यारा, जन्म सार्थक करी करा पर उपकार। भगवान राम कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। वाई? कुछ तो कारण होगा ना, जब इतना उस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है। उसको समझना है, लेकिन हम लोग नहीं समझते हैं। तो उसको समझने के लिए अभी आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द सॉल्यूशन इज द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये जो संघ है, इस संघ में बैठ करके हम लोग का थोड़ा थोड़ा माइंडसेट चेंज होगा। बिकॉज अल्टीमेट एंजॉयर कौन है, ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ लो।
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, आप समझिए। आप कुछ खा रहे हैं, कौन एंजॉय कर रहा है? क्या शरीर एंजॉय कर रहा है या मन एंजॉय कर रहा है? मेरा मन भर गया, मन प्रसन्न हो गया, तृप्ति हो गई, तो वो कहां हो रही? आपका मन जो है, आपका माइंड है, और वही आपका सूक्ष्म शरीर है। दैट इज द सटल बॉडी, दैट बिकम्स द रीजन फॉर नेक्स्ट बर्थ एंड यू गेट अ बॉडी। सो दिस इज ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी डज नॉट एंजॉय। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता। शरीर भोग नहीं भोग रहा है, भोग शरीर को भोग रहे हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। हमारे भर्तृहरि जी हुए हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने वैराग्य शतकम लिखा है, उसमें से एक श्लोक ये है। वो कहते हैं भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। शरीर भोग को नहीं भोग रहा है, भोग शरीर को भोग रहे हैं। आप मीठा खा रहे हो, यू आर ईटिंग शुगर, यू आर नॉट ईटिंग द शुगर, शुगर इज ईटिंग यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप समझ रहे हो? तब शरीर नहीं कर रहा है, जो ताप आप झेल रहे हो वो शरीर को ताप रहे हैं। आप ओवर टाइम कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, किसी तरीके से पैसा कमा के ला रहे हो घर चलाने के लिए, बच्चों के लिए, उनको एंजॉयमेंट दे दो, उनको इतना गिव देम फैसिलिटीज एंड ऑल ऑफ दिस, बट अल्टीमेटली हु इज सफरिंग? पर ये समझ में आता है जब तक जिंदगी जाने वाली होती है। आई एम श्योर आप लोग कुछ एज के स्टेज पर हैं, कुछ लोग 60 प्लस है, मैं भी 50 प्लस हूं, है ना? तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, रियलाइज होता है अरे ये ऐसा नहीं है, तब ऐसा कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। और फिर फाइनली जब कुछ बस में नहीं रहता तब कहते हैं सब धोखा है, राइट? द कंक्लूजन इज सब सब बेकार है, सब माया जाल है, सब झूठा है, राइट? यही कंक्लूजन होता है ना। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। हे अर्जुन, ये जो लोक है ये अनित्य है, इम्परमानेंट है, असुखम है, दुख से भरा हुआ है। फिर भगवान इसको प्राप्त करके क्या करो? भगवान कहते हैं मेरा भजन करो। सो दैट इज द सॉल्यूशन। सो लास्ट चैप्टर में ये पुरंजन पुरंजनी की आप कथा समझ गए। उसके बाद जो इनके पिता हैं, अभी हम बात कर रहे हैं बर्हिष्मत, राजा बर्हिष्मत। जो लोग अब की बार आ रहे हैं, नए लोग हैं जिनको, दोस्त हु डोंट नो, किंग बर्हिष्मत, ही इज इन द डायनेस्टी ऑफ ध्रुव महाराज। तो उनके बारे में चर्चा की जा रही है, उनके उनके पुत्रों के बारे में। अबाउट किंग बर्हिष्मत, ही वाज ए फ्रूटिटिव, वो यज्ञ कर रहे थे, ही वाज परफॉर्मिंग यज्ञ सेरेमनीज। उसमें बहुत से एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जा रहा था। एंड व्हेन ही वाज डूइंग दैट, तो नारद जी ने आके उनको बताया कि ये तुम किस लिए कर रहे हो, इससे जो होगा इसका काउंटर इफेक्ट होगा। और ये जो कर्म तुमने किए हैं, द एनिमल्स दैट यू हैव किल्ड, जिन पशुओं को तुमने मारा है, नारद जी ने उनको दिव्य दृष्टि देकर दिखाया। देखो आकाश में, look at all these animals that you have killed, now they are waiting to kill you। तो जो मैंने कहा ना यावतीर यातना दया, तो इस मनुष्य शरीर में आपने जितने भी अपराध किए हैं, उन सब अपराधों की एक एक करके आपको सजा मिलेगी। अगर आपने एक चिकन को मारा है तो यू विल बिकम ए चिकन, एंड दैट सेम चिकन विल किल यू। दैट इज वन क्रॉस। इफ यू किल्ड पनिश्ड, लेट्स से इफ यू किल्ड, किसी ने अगर 10 बार चिकन खाया है तो you become chicken 10 times, and the same chicken will kill you 10 times. Like this, you take those many births, and then you are promoted। पुनर अत्र आवर्जितो शुचि। वो भगवान कह रहे हैं फिर से आप यहाँ पे आते हो इस पृथ्वी लोक पे। अब प्लीज आगे आ जाए, मेरे ख्याल से लोग पीछे आ रहे हैं, इट विल बी इजी फॉर देम टू। बिल्कुल यहाँ आगे आ जाओ, प्लीज कम क्लोजर। इधर भी आगे आ जाओ, अच्छे से आ जाओ, so that they can come and comfortably take the seat, right? So you have to go through all of that. So that's what Naraji told Prachin Barhi, that all of these fruitive activities, ये जितने भी लोगों को तुमने मारा है, जितने भी पशुओं को तुमने मारा है, now they are waiting to kill you, right? A time will come when they will kill you। वो अपने जो हॉर्न है, अपने सींगों से तुमको मार देंगे। And then Prachin Barhi realizes
that what I was doing was wrong. And then Prachina Barhi left his home and he went to the forest. फिर उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया. Right? मतलब he totally immersed himself into devoting, into performing devotional service to the Supreme Lord Krishna. भगवान के भजन में लग गए. Right? So that was about Prachin Barhi. Now Prachin Barhi was doing this. His sons, I told you, his 10 sons, जिनको प्रचेता कहा जाता है, वो लोग भगवान की आराधना करने गए थे. प्राचीन बरही ने अपने बेटों से कहा, he told his sons that you all should go get married and increase the progeny. जनसंख्या को आप बढ़ाइए. Right? But instead those 10 sons, they went to perform. उन्होंने कहा कि हम पहले पूजा करेंगे. देखो कैसा आजकल आप बोलो लड़के को एक गर्लफ्रेंड ले आओ और भैया कुछ परिवार को आगे बढ़ाओ, बोलेगा such a cool dad. But children, what did they do? They said, we will first please the Supreme Personality of Godhead. हम पहले भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे, फिर हम बच्चे पैदा करेंगे. तभी तो फिर बच्चे पैदा होते हैं. भक्त बच्चे तभी पैदा होंगे, नहीं तो कुत्ते बिल्ली की तरह पैदा हो रहे हैं. And then you see their activities and we suffer, they suffer, isn't it? They suffer, people around them suffer. क्योंकि जीवात्माएं वो वेट कर रही हैं. There are sinful souls also who are waiting for a womb to get entry into those wombs. This is totally scientific process. This is all proven. That is why we do गर्भदान संस्कार. 16 संस्कार होते हैं हर एक प्राणी के. 16 संस्कार. The beginning one is गर्भदान संस्कार. When husband and wife get together, they do Garbhadan Samskar so that a pure soul may come enter into the womb of the mother. And that pure soul will then uplift the whole family. So they pray and all of, so that's what Prachetas are doing. उन्होंने जाके भगवान की तपस्या की and because they had good intentions, they met Lord Shiva on the way. भगवान शिव के उनको दर्शन हुए. भगवान शिव ने उनको रुद्र गीत बताया. जो रुद्र गीत भगवान शिव ने कहा कि हमें ब्रह्मा जी ने बताया था. य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतम भगवत स्तवम. भगवान शिव ने उनको कहा कि जो इस गीत को श्रद्धा से गाएगा, ये मेरा गीत जो मैं आपको बता रहा हूं, राइट, जो भगवान की स्तुति कर रहा है, भगवत स्तवम, उसका क्या रिजल्ट होगा? दुराराध्यम अधियानो दुराराध्यम हरि आराध्यति असौ. जो भगवान हरि जिनकी भक्ति बहुत ही मुश्किल है, दुराराध्य जिनको कहा गया है, it is difficult to please that supreme personality of Godhead. God is not difficult to please, don't take it this way. God is waiting. भगवान तो वेट कर रहे हैं कि आप मेरी तरफ कब देखोगे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा. He is not difficult. Difficulty is with us. You understand this point? हम लोग अक्सर भगवान को ब्लेम कर देते हैं कि भगवान सुन नहीं रहे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान तो बड़े कठोर हैं, निष्ठुर हैं. भगवान इज वेरी सॉफ्ट, ही इज वेटिंग. बट भगवान का एक जगह चैलेंज है, इसको समझ लो. भगवान कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. Try to understand this point. What Bhagavan is saying is Mam eva, only me, exclusive. Are you with me? Everybody following? What is Krishna asking? Mam eva, Mam ekam, only me, exclusively me. If you come to me, I take away all your sins. You don't have to worry. But what is our position? पति भी चाहिए, भगवान भी चाहिए. भगवान कह रहे हैं मैं ही, और हम कह रहे हैं भगवान भी. You understand the difference? Lord is saying only me, and we saying Lord, wife also, and wife also, and children also. Then Bhagavan says go. Do your time pass and come back to me when you're ready. Understand the difference? So Krishna is not difficult. It is our condition.
और भगवान भी जिद्दी हैं, वो भी अपने उस पे अड़े हुए हैं, मैं ही, ओनली मी, ओनली देन आई विल एक्सेप्ट यू। और जीवात्मा भी इस पे अड़ा हुआ है। भगवान थोड़ा थोड़ा वाइफ भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा घर भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, आप भी चाहिए, यू आर ऑल्सो गुड नाउ, राइट? अंडरस्टैंड? सो समहाउ वी हैव टू गेट इनटू दैट मोड। तो उसमें किसी को छोड़ना नहीं है, वी जस्ट हैव टू टेक एवरीवन टुगेदर, यू अंडरस्टैंड? पत्नी को भी भगवान की सेवा में लगा दो, बच्चों को भी भगवान की सेवा में लगा दो, everybody becomes devotee of Krishna, then there is no question of leaving anyone behind, so we all go together, understand? Let's all go together in the shelter of Lord Krishna, and we'll see now Bhagavan is telling Prachetas, you can enjoy this life for 1,000,000 of years. He gave them a boon to enjoy life on this planet for 1,000,000 demigod years, divya years. Come enjoy. So he's not saying not enjoy, but the mood has to be, everything has to be dovetailed in the service of Krishna. Get that point? So like this, Naradji told Prachin Barhi, and now we're going to talk about the sons of Prachin Barhi. They got darshan of Bhagwan Shiv. Bhagwan Shiv ने उनको रुद्र गीत बताया, और उन्होंने पानी में जाकर के they entered into the sea waters for 10,000 years. They performed, उन्होंने वो रुद्र गीत गा करके भगवान को प्रसन्न किया, right? And then they got darshan of भगवान. So आज के जो अध्याय है, आज का जो चैप्टर है, उसमें हम लोग भगवान विष्णु के उनको दर्शन होते हैं प्रचेताओं को, और कैसे उनके बीच में वार्तालाप होता है, how they converse with each other, what भगवान is telling them to do and what they are asking from the Lord. आज उसके ऊपर चर्चा करें, ठीक है? अब आप अपना फोन खोल लीजिए, 4th canto चैप्टर नंबर 30. तुषार ने बोला था, तुषार सेड के प्रभु इस पे शेयर कर लेते हैं, बट देन आई रियलाइज इफ वी शेयर ऑन दिस यू विल नेवर यूज वेदावेस ऑन योर फोन्स. आप अपने इंस्ट्रूमेंट को कभी उस पवित्र करोगे नहीं, आपका इंस्ट्रूमेंट भी पवित्र हो जाएगा व्हेन यू ओपन श्रीमद् भागवतम ऑन योर फोन्स. तुषार, प्लीज हेल्प एवरीवन. आई थिंक सम ऑफ देम आर यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट यू गो टू ब्राउजर, वेदावेस पे आप जाइए, श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो, chapter number 30, verse number 42. Chapter number 30. 30 is the chapter, and verse number 42. प्रचेता ये भगवान को ये प्रेयर ऑफर कर रहे हैं, और कंक्लूडिंग प्रेयर्स में ये वर्ष को भगवान के साक्षात उनको दर्शन हो गए. They are seeing the Supreme Lord face to face. Chapter 30, verse number 42. Please let me know when we are ready to recite the verse together. Or you can search Srimad Bhagavatam SB 4.30.42 on your browser. Google पे आप जाइए and it will bring up that verse. SB 4.30.42. 4.30.42. अच्छा, 4 कैंटो 4 आप टाइप कीजिए SP 4.30.42. 42. कोई बात नहीं, don't feel like if it takes time, it takes time. That's fine. आप एक वर्ष ही ढूंढ रहे हैं फोन पे, आप कोई बॉलीवुड का गाना नहीं ढूंढ रहे हैं, भगवान नाराज नहीं होंगे. Don't worry. This is the effort. This is how you will learn. Tomorrow, if you have to look for something, how will you look? Hare Krishna, Prabhu, आइए. Please take a seat. Please let me know when everyone is ready. तैयार है सब लोग? ठीक है माते, हो गया सब?
Please repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namah Samaya Shuddhaya. Namah Samaya Shuddhaya. Purushaya Paraya Cha. Purushaya Paraya Cha. Vasudevaya Sattvaya. Vasudevaya Sattvaya. Tubhyam Bhagavate Namah. Tubhyam Bhagavate Namah. तो ये प्रार्थना प्रचेता भगवान को सामने खड़े हैं उनके. The Supreme Lord is standing in front of them. भगवान गरुड़ पे आए हैं एंड प्रचेता उनको डायरेक्टली प्रे कर रहे हैं. तो आप भी जब ये श्लोक बोले विजुलाइज करें. प्लीज विजुलाइज इन योर माइंड. मन में ध्यान करें कि भगवान आपके सामने साक्षात हैं. जगन्नाथ भगवान है, लड्डू गोपाल है, सब कुछ. अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश. एक बार फिर से बोलते हैं. नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च. वासुदेवाय सत्त्वाय. तुभ्यं भगवते नमः. Very nice. Word by word translation. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Please repeat. Namah. We offer our respectful obeisances. Samaya, who is equal to everyone. Shuddhaya, who is never contaminated by sinful activities. Purushaya, unto the Supreme Person. Paraya, transcendental. Cha, also. Vasudevaya, living everywhere. Sattvaya, who is in the transcendental position. Tubhyam, unto you. Bhagavate, the Supreme Personality of Godhead. Namah, obeisances. Ab translation. Please repeat. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Dear Lord, you have no enemies or friends. Therefore, you are equal to everyone. You cannot be contaminated by sinful activities. And your transcendental form is always beyond the material creation. You are the Supreme Personality of Godhead because you remain everywhere within all existence. You are consequently known as Vasudev. We offer you our respectful obeisances. सब कुछ समझ में आ गया? Everybody understand the translation.
Now I request one Mataji and one Prabhuji to recite the verse. Everybody will repeat it. Mataji, who wants to recite? Please don't hesitate. These are transcendental vibrations. The speaker is purified, the hearer is purified, right? And the people who repeat, they also are purified. Please speak, recite. Mataji, you want to try? श्लोक बोलना है माताजी, आप जैसे मर्जी बोलिए हिंदी में। नमः समाय शुद्धाय चाय पदाय वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। कोई प्रभु जी रिसाइट करें तुषार। नमः समाय शुद्धाय नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च देवाय सत्वाय वासुदेवाय सत्वाय ते नमः। तुभ्यं भगवते नमः। अब इस श्लोक का जो परपोट है, भावार्थ है, वो आप सुन लीजिए। परपोट बाय श्रील प्रभुपाद की। प्लीज हियर। The Supreme Personality of Godhead is known as Vasudev because he lives everywhere. The word vas means to live, as stated in Brahma Samhita, Ekopi asau rachitum jagad and kotim. The Lord, through his plenary portion, enters into each and every universe to create the material manifestation. He also enters into each and every heart in all living entities and into each and every atom also. Paramanu cha antarstham. Because the Supreme Lord lives everywhere, he is known as Vasudev. Although he lives everywhere within the material world, he is not contaminated by the modes of nature. The Lord is therefore described in Isha Upanishad as apapa vidham. He is never contaminated by the modes of material nature. When the Lord descends to this planet, he acts in many ways. He kills demons and performs acts not sanctioned by the Vedic principles, that is, acts considered sinful. Even though he acts in such a way, he is never contaminated by his action. He is therefore described herein as Shuddha, meaning always free from contamination. The Lord is also Sama, equal to everyone. In this regard, he states in Bhagavad Gita 9.29, Samo aham sarva bhuteshu name dveshosti na priye ye bhajanti tumam bhaktya mai teshu chapiya. भगवान कह रहे हैं मैं सबके लिए बराबर हूं। अगर आप भक्ति रूप से मेरा भजन करते हैं तो मैं आप में हूं, आप मुझ में हैं। So there is no difference. So he is equal to everyone. The Lord has no one as his friend or enemy and is equal to everyone. The word Sattva indicates that the form of the Lord is not material. It is Sat Chit Anand Vigraha, Ishvara Parma Krishna, Satchidanand Vigraha. His body is different from our material bodies. One should not think that the Supreme Personality of Godhead has a material body like ours. चलिए अभी टाइम नहीं है, नहीं तो वी कैन टॉक अबाउट दिस। अभी पूरे चैप्टर को हमें करना है तो वी विल हम लोग थोड़ा अध्याय के विल डिस्कस ऑन द चैप्टर। लेट्स डू मंगलाचरण और फिर हम डिस्कस करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितान्तं सजीवं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च कृष्णा करुणा सिंधु
दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूते महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूष पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दश षोडशात्मकम् सोलंक सृष्ट भगवान् वचांसि मे श्री कृष्ण शरणं शरणागतं कथा अमृतं सतत पीबतं भक्ति वेदांत मार्ग पंथनम सर्वलोक ऋषिदे जन्म प्रसन्नम सर्वलोक ऋषिदेव जन्म प्रसन्नम। Hare Krishna, Prabhuji and Mataji. May the Supreme Lord decorate my tongue. May the right words are spoken at the right time. And may we are all truly able to glorify the Supreme Personality of Godhead, Srila Prabhupada, Sarv Guru Maharaj, and all the living entities. Hare Krishna. तो आज का जो चैप्टर है उसका टाइटल है नारद जी प्रचेताओं को भगवान विष्णु के दर्शन। प्रचेता had a darshan of Lord Vishnu, the activities of the prachetas, actually that is the chapter of the title, but in essence they got darshan of Bhagwan Vishnu. So ये कन्वर्सेशन किन के बीच में चल रहा है? Who is talking to whom? मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं जो कन्वर्सेशन भागवत में हो रहा है। विदुर जी सुन रहे हैं और मैत्रेय जी बता रहे हैं। देखो एक और एग्जाम्पल है, सिर्फ दो लोगों से सत्संग हो रहा है। कई बार हम लोग सत्संग में भी भीड़ देखते हैं, वी सी कितने लोग आए हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर, राइट। कम लोग हैं या कुछ सत्संग में मजा नहीं आ रहा है। तो व्हाट आर वी लुकिंग फॉर देन? आर वी लुकिंग फॉर सत्संग और आर वी लुकिंग फॉर भीड़? भीड़ देख रहे हैं, भीड़ कितना है? यहाँ दो लोगों में सत्संग हो रहा है, टू पीपल। भगवान कृष्ण एंड अर्जुन, ओनली टू पीपल। कृष्णा इज स्पीकिंग, अर्जुन इज लिसनिंग। कितना अच्छा सत्संग हुआ। बट अर्जुन वॉज अटेंटिवली लिसनिंग। अर्जुन को जिज्ञासा थी। जिज्ञासया अहम शादि माम त्वाम प्रपन्ने। भगवान मुझे जिज्ञासा है एंड आई सरेंडर टू यू नाउ प्लीज पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। आई एम आस्किंग यू, मैं आपसे पूछ रहा हूं भगवान, और मैं बिल्कुल मूर्ख हूं, आप प्लीज मुझे बताइए। You please tell. So that with that mood, if you want to hear Hari Katha, then it will have an effect. Right? So here Maitreya ji is speaking to Vidur ji, and Vidur ji is asking questions. So Maitreya ji was describing the dynasty of Dhruv Maharaj. So now he is talking about the Prachetas. So Maitreya ji asked, Vidur ji now asked from Shri Vidur ji, सब जानते हैं? Everybody knows who is Vidur? Who is Vidur? He is Pandu's brother. दासी पुत्र? नहीं, दासी पुत्र नहीं है।
He is the son of Vyasdev. You should remember him as son of Vyasdev, not a Dasiputra. Who is Vyasdev? महाभारत लिखी, but he is none other than Krishna himself. वो भगवान है स्वयं. He is the literary incarnation of Supreme Personality of Godhead. तो विदुर जी को दासी पुत्र मत कहिए. विदुर जी son of भगवान व्यासदेव. Pandu is son of Vyasdev, and Dhritarashtra is also son of Vyasdev. People don't like Dhritarashtra. Good question. Dhritarashtra andha tha, blind fellow. He was so much, मोह में आ गया, अपने बेटे के मोह में सब खराब कर दिया. धृतराष्ट्र ये नहीं करता तो ये नहीं होता. वो भी व्यासदेव के पुत्र हैं, विदुर भी व्यासदेव के पुत्र हैं, और पांडु भी व्यासदेव के पुत्र हैं. Right? Everybody knows that. So now Vidurji is asking from Maitreya Rishi कि प्रचेता जो थे, right? ये 10 भाई थे. They were 10 brothers. और they all performed this austerity. He is asking that इन्होंने रुद्र गीत गा करके ते रुद्र गीतम हरिम सिद्धिम आपु प्रतोष्य काम. उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लिया. They pleased the supreme personality of Godhead by chanting the रुद्र गीत. उसके बाद उन्होंने क्या किया? He's asking that question, right? And then he also repeats, in the next verse he's saying, I am sure they would have got उनको भगवत धाम की प्राप्ति तो हो गई होगी. प्रापु परम is they would have gotten the भगवान का धाम तो उनको मिल ही गया होगा. प्रापु परम नूनम is certainly they would have got the abode of the supreme personality of Godhead. भगवत धाम में वो चले गए होंगे, but उन्होंने यहां पे क्या किया? That's what I want to know. Very good point. You got darshan of Lord Vishnu. You are destined to go back. You are sure now your ticket is booked to the Bhagavad Dham. What will you do? By asking, this is how we understand उन्होंने अपने जीवन को कैसे जिया. हम लोग का जब ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग गया था, हमने इंडिया में क्या किया था? पार्टी, पैकअप पार्टी, फोन कॉल्स, हम तो जा रहे हैं, राइट? हमारा तो वीजा लग गया है, टिकट भी बुक हो गई है, हमसे मिलने आना है, आ जाओ. What were our activities? So similarly here, Vidurji is asking कि when Prachetas had a darshan of Bhagwan Vishnu, उनको डेफिनेटली परम गति तो मिल गई होगी, लेकिन उन्होंने यहां क्या किया? इस पे आज का फोकस है. This is what we will try to understand. Even though you are assured to go back home, back to Godhead, भगवान का दर्शन हो गया, but what are our activities? Does it mean you get a ticket to enjoy now? अब तो पक्का हो गया है, PR तो मिल गई है, भगवान ने खुद प्रॉमिस कर दिया है. What are we going to do? So this is what Vidurji asks from Maitreya Rishi. कि definitely they would have gone back. Now Maitreya ji starts speaking. Maitreya ji उनको कहते हैं कि that by chanting रुद्र गीत, right? उन्होंने भगवान पुरंजन को प्रसन्न किया, right? पुरंजनम तोषयन, right? He says यज्ञ जप यज्ञ तपसा पुरंजनम तोषयन. उन्होंने जप यज्ञ किया. जप यज्ञ क्या होता है? अभी जैसे आपने चैंटिंग की थी, right? So that is also called यज्ञ. How many of we think यज्ञ only means आग में, अग्नि में वो डालना होता है? सिर्फ वो सिर्फ यज्ञ नहीं होता है. आप भगवान का नाम लेते हो, वो भी यज्ञ है. यज्ञ का लिटरल मीनिंग क्या है, कोई बताएगा? यज्ञ का मतलब क्या है? ऑफरिंग. यस, कोई और बताए? थोड़ा सा और डीप में जाए और बताएं. Yeah is to know something. Yeah. और बताएं. यज्ञ का मतलब क्या है, समझ लें. यज्ञ का संकल्प, ऑफरिंग तो है ही. सेक्रीफाइस में थोड़ा सा क्या करते हैं आप थोड़ा सा छोड़ रहे हैं. You understand? Sometimes you say, I'm sacrificing this for you. Now you all have come here. This is also yajna, because you have sacrificed your time. You could have been somewhere else,
but you have sacrificed your time to come here to hear हरि कथा। तो यज्ञ का लिटरल मीनिंग है सेक्रीफाइस। अब उसको आप अग्नि में आहुति दे करके करें, उसमें भी आप कुछ तो धनराशि लगाते हो, सामग्री लेके आते हो, राइट। आप उसको वैसे करें जैसे कहते हैं ना, तन मन और धन से, माइंड बॉडी एंड योर Lakshmi, right? In any form you can do it. So that is called sacrifice. So that's what here Maitreya ji is saying. Japa yagna tapsa, उन्होंने तपस्या कैसे की, यज्ञ किया और जप का यज्ञ किया। तो चैंटिंग ऑफ द होली नेम, भगवान ने उनको रुद्र गीत बता दिया था, रुद्र गीत उन्होंने गाया, उनका जो जाप था वही उनका तपस्या हो गई और उसको यज्ञ कहा गया है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। By doing that, he is saying, उन्होंने पुरंजनम तोषयन, पुरंजन, अब पुरंजन पहले मैंने बताया था आपको, पुरंजन किसको कहा गया, जीवात्मा को कहा गया। बट हियर पुरंजन मीन्स जीवात्मा एज वेल एज परमात्मा। पुरंजन लिटिल मीनिंग इसको ब्रेक करें, कहते हैं जो पुर में जो रहता है, पुर क्या है, सिटी। हमारी बॉडी को, if you go back, you listen to other classes, our body is called, ये एक सिटी ऑफ 9 गेट्स है। 9 गेट्स कौन कौन से हैं बताइए प्रभु, 9 गेट्स कौन कौन से हैं? 2 आईज, सब लोग फॉलो कर रहे हैं। 9 गेट्स इन दिस बॉडी, और इसको कहा गया सिटी ऑफ 9 डोर्स। इसमें जीवात्मा रह रहा है। नवद्वारे पूरे देही, भगवत गीता 5.13, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, वर्किंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो 9 द्वार कौन कौन से बताइए? 2 आंखें हैं, 2 नॉस्ट्रिल्स हैं, 1 माउथ है। इनको कहा गया है, ईस्ट साइड में 5 द्वार हैं, ईस्ट पूर्व। देन 2 ईयर्स, ओके, राइट ईयर इज कॉल्ड दाहिना ईयर, दक्षिण, राइट, दक्षिण। और दक्षिण के अपोजिट क्या होगा? उत्तर। सो नॉर्थ इज द लेफ्ट ईयर। हाउ मेनी हो, कितने हो गए? 7, and 2 are below, they are called west side, right, जहां से आप स्टूल पास करते हैं और यूरिन पास करते हैं। तो दे 9 डोर हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, the level of devotion that a jivatma is performing is also judged by which door they leave the body from at the time of death. Many people, they said they leave the body from the lower gates, from the west side. From the head. आपकी हेड से जाएगी, ठीक है। They are directly going to the hellish planets. Please try to focus, So these 9 gates are in the body, and the living, जब जो जीवात्मा है शरीर छोड़ती है, इन 9 द्वारों से छोड़ती है, और जो प्योरली एक्सॉल्टेड होते हैं वो तो ब्रह्म रंध्र जिसको कहा जाता है, वो यहां से सीधा भगवत प्राप्ति को हो जाती है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। तो उन्होंने जप यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लिया था प्रचेताओं ने, बाय चैंटिंग रुद्र गीत। एंड ये मैत्रेय जी बता रहे हैं, एंड डूइंग दैट यज्ञ जो कर रहे थे, वो थोड़ा सा उनको क्या बोलते हैं, मुश्किलें भी होती हैं। अभी जैसे कई बार हम लोग गए थे, हमने किचन में सर्विस की, वहां पर माता जी आए थे, इनका परिवार आया था, तुषार प्रभु थे, सब लोग थे। हम लोग सेस्नर फार्म पे गए, वी डिड द कुकिंग देयर, मॉर्निंग से आफ्टरनून तक कुकिंग किया, फिर सर्व किया, क्लीन अप किया। तो करते करते थोड़ा सा शारीरिक रूप से इनसाइड वी वर फीलिंग जॉयफुल, बट बॉडीली वी वर लिटिल बिट टायर्ड। थोड़ा सा थकावट हो गई थी शरीर में, पसीना आ रहा था, थकावट था, रेस्ट करना चाह रहे थे, राइट। तो इस तरीके का जो उनको हो गया था, तो कहते हैं जब भगवान विष्णु आए, when Lord Vishnu came, the first thing that he did was, उनको जो बॉडीली जो ट्रबल हुई उसको कहते हैं कृच्छ्रम। वो जैसे ट्रबल हुई तो भगवान ने सबसे पहले उसको शांत कर दिया। कृच्छ्रम शांतेन शमयम रुचा। भगवान ने उनको देखा, और भगवान ने जैसे उनको देखा, उनकी बॉडीली पेन सब चली गई। कहते हैं भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, जब भगवान कृष्ण गए, एंड द मोमेंट भगवान कृष्ण लुक्ड एट, आप इमेजिन कीजिए, यू हैव, आपके पूरे शरीर में तीर घुसे हुए हैं, कितनी पेन हो रही होगी।
मेरे ख्याल से उस वक्त तो एनेस्थीसिया वगैरह कुछ था नहीं, है ना? वो बाणों के शैया पे लेटे हुए, कितनी पेन हो रही होगी, लेकिन भागवतम में लिखा है जैसे ही भगवान ने उनको देखा उनकी सारी पेन चली गई, एंड ही स्टार्टेड ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम लॉर्ड। वो भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान की ग्लोरिफिकेशन करने लगे। तो ये भगवान का दृष्टि का वो बेनिफिट होता है। तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने जो तपस्या की थी प्रचेताओं ने 10,000 साल तक, उन्होंने रुद्र गीत से भगवान को प्रसन्न कर लिया, और वो 10,000 साल पानी के नीचे खड़े रहे। तो उससे उनको जो भी तपस्या, जो भी उनके बॉडीली वो हुआ, भगवान ने उनको देख के सब कुछ ठीक कर। और जब कहते हैं प्रचिताओं ने भगवान को देखा, तो भगवान अपने गरुड़ पर बैठे हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि सुमेरु पर्वत पर कोई एक नीले रंग की कोई आभा छाई गई है। द सुमेरु इज द टॉप मोस्ट माउंटेन, एंड इट वॉज लुकिंग एज इफ द होल माउंटेन इज सराउंडेड बाय सम ब्लूइश आभा। और भगवान इतना सुंदर उनका स्वरूप लग रहा था। भगवान के 8 भुजाएं थी, 8 भुजाओं में उनके कोई एक अस्त्र था। भगवान के माथे पे, सिर पे वो ब्यूटीफुल हेलमेट, उन्होंने जो एक वो मुकुट पहना हुआ था। उनके कान में बहुत सुंदर ईयररिंग थे जो उनके गालों को टच कर रहे थे। गोल्डन उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे। उन्होंने एक फूलों की माला पहनी हुई थी जो घुटनों तक आ रही थी, अप टू द नीज। विजुलाइज कीजिए, राइट, ही वाज सिटिंग ऑन द गरुड़ एंड ही वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और जो गरुड़ जी जो अपने पंख हिला रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि वेद उनकी स्तुति कर रहे हैं। द वेद्स आर ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम लॉर्ड। ऐसा विजन बता रहे हैं मैत्रेय जी, ऐसा विजन था जब प्रचेताओं ने भगवान को देखा। ऐसे उनको भगवान के दर्शन हुए, इतने सुंदर भगवान लगे। और जैसे ही भगवान ने उनको देखा, भगवान ने उनको देख के कहा कि आई एम वेरी हैप्पी विद यू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने इतने सालों तक तपस्या की है। There were 10 brothers. He said, you all brothers performed austerity for so many years, and you all performed this austerity with a single objective. What was their single objective? To please Supreme Personality of Godhead. भगवान की प्रसन्नता ही उनका एक उद्देश्य था, सबका एक ही उद्देश्य था, एक ही पर्पस था। अब आप सब यहाँ आए हो, आप सबका एक ही उद्देश्य है और होना भी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता बस। ठीक है, होस्ट ने बुलाया है, कोई आया है, कोई नहीं आया है, वो सब ठीक है। अब यहाँ आ गए तो अब सब भूल जाना है। भगवान की प्रसन्नता ही एक उद्देश्य है। इस भाव से उन्होंने भगवान की स्तुति की, उन्होंने भगवान की आराधना की, और भगवान ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। क्योंकि सौहार्देन अपृथक धर्म तुष्टो। सौहार्द, सौहार्द मतलब तुमने फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट यू हैव परफॉर्म दिस ऑस्टेरिटी। अपृथक धर्मेन, कोई सेपरेट ऑब्जेक्टिव नहीं है, यू हैव ओनली सिंगल ऑब्जेक्टिव। तस्माद एकेन मनसा, राइट, देयरफॉर विद सिंगल पॉइंटेड अटेंशन। So the Supreme Lord said, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। वरम 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 वृणीध्वम, आस्क फॉर अ बून फ्रॉम मी। भगवान ने शुरुआत ही ऐसे कर दी कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वर मांगो। एंड देन भगवान बात करते गए। भगवान की मैं ब्यूटी का आपको बताता हूं। हमारे एक हुए हैं मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती थे ग्रेट स्कॉलर। He used to live in Banaras and he was a follower of भगवान शंकराचार्य की पूजा वो करते थे, फॉलोअर थे, उसमें भगवान शिव की आराधना करते थे। And he was a great scholar. He used to have debates. डिबेट्स करते थे और डिबेट्स में सामने वाले को हरा देते थे हमेशा। we often have debates। कई बार हमें आदत होती है, तर्क करने की आदत होती है, राइट। कुछ तो इसी बात पे तर्क करके झगड़ा कर लेते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, राइट। राइट, टू पीपल समटाइम आर्ग्यू। अरे क्या बात कर रहे हो, मैंने देखा यार वेदर चैनल पे बता रहा है। अरे तुमने कौन से चैनल पे देखा, मैंने इस पे देखा, कल बारिश नहीं है। छोड़ो यार, तुमसे बात करना बेकार है, तुम तो सुनते ही नहीं हो। देखा, इसलिए कहते हैं जहां तर्क वहां नरक। इस बात को आप याद कर लो, जहां तर्क वहां नरक। हेल इज देयर, जहां हम लोग बेकार का तर्क कर रहे हैं।
तो इस तरीके से मधुसूदन सरस्वती तर्क करते थे, उनको हरा देते। बट ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। कई बार छोटे छोटे हमारे इवन आफ्टर अटेनिंग समथिंग कुछ ना कुछ रह जाते हैं, और भगवान अपनी लीला से उसको रिफाइन कर देते हैं। ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी, यू नो, गॉड फॉरगिव अस, बट वी आर डिस्कसिंग दिस पास्ट टाइम टू लर्न फ्रॉम इट। तो मधुसूदन सरस्वती, और वो ये कहते थे, ब्रह्म के वो उपासक थे, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, भगवान शंकराचार्य ने जो मंत्र दिया, वो कहते हैं तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है, मेरे अंदर भी ब्रह्म है, हम सब ब्रह्म। एक बार वो बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए वृंदावन में, और दर्शन करके वहां से निकल रहे थे। अब दर्शन करके वहां से निकल रहे थे तो किसी ने उनको कहा कि क्या आप मधुसूदन सरस्वती हैं? आर यू मधुसूदन सरस्वती? वन पर्सन आस्क्ड हिम, एंड ही फेल्ट वेरी हैप्पी। He said somebody is recognizing me in Vrindavan, or even though I live in. उन दिनों व्हाट्सएप वगैरह तो था नहीं, अब कौन जाने दूसरे शहर में खबर कैसे पहुंचती है। He was very pleased. He said, yes, I am Madhusudan Saraswati. उसने कहा मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। उन्होंने कहा पूछिए। He said, आप कहते हैं तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है, मेरे अंदर भी ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है। उसने कहा yes. Then he said, तो मुझे आपसे ये पूछना है, आप लोगों से तर्क करते हैं, यू डू आर्ग्यूमेंट्स विद द पीपल एंड यू डिफीट देम, क्या एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को हराकर प्रसन्न होता है? When one Brahma defeats another Brahma, is Brahma pleased? And this made him think. मधुसूदन सरस्वती सोचने लगे। And when he came back to Banaras, वो अपने रूम में कुछ दिन तक बंद हो गए। He locked himself in his room. उनके जो डिसाइपल थे, he was a great scholar, I'm telling you again and again. The disciples were concerned about the health of their spiritual master. उनको चिंता होने लगी, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी ने प्रवचन नहीं किया, कुछ बताया नहीं। And then one day they went to his room and they knocked the room and they said, Guruji, please come, प्रवचन कीजिए, please give us a lecture, please tell us about Brahma, please tell us about the Supreme Lord and this and that. And then Madhusudan Saraswati came and he started speaking to them. और फिर मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि वंशी विभूषित करात नवनीर दाभात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात, राइट, अरुण बिंब फल अधोष्टरात अरविंद नेत्रात पीतांबरात कृष्णात परम तत्व किमपि अहम न जाने। उन्होंने कहा कि आप आइए, तत्व के बारे में हमें बताइए, तत्व क्या है। And then he spoke this, he said, Vanshi Vibhushit Karat, that Krishna, that personality who is holding a flute in his hand, right? Navneer Dabhat, whose form, the bluish form, right? Like a new cloud, that personality, right? Whose face is like Purnendu, like a full moon. That beautiful is his face. Arvind Netrat, lotus eyes. He has lotus eyes. Arun Phal Adostrat. You know, when the sun is rising, तो जो लालिमा होती है, ऐसे उनके होठ हैं. His lips are so beautiful, like the जो लालिमा होती है when the sun rises. Arun Phal Adostrat. Pitambarat, who is wearing the yellow garments. And then finally says Krishna, जो कृष्ण है, उनसे परम तत्व कुछ और नहीं है, ये मैं नहीं जानता, और या कोई उनसे और बढ़ के है ही नहीं. That's all I know. So that's how he described the supreme personality of God. तो जब प्रचेताओं ने भगवान को देखा गरुड़ पे, तो मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं. He is the only तत्व, he is the supreme तत्व, he is the ultimate goal. So when Prachetas saw, this is how they received the Supreme Lord, this is how उन्होंने भगवान की तरफ देखा. So that mood we want to develop, inculcate within our hearts also. मैं आपको एक और बताना चाहता हूं. Sorry, this is another very important concept. Now, one is Krishna's beauty, one is our attitude. एक बार चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, एंड बहुत से लोग आते थे. Many people used to come and attend the कीर्तन. एक कीर्तन में एक आदमी आता था कीर्तन में, एंड काफी लोग कीर्तन में रोने लगते हैं. You see some people start crying. उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, राइट. The hairs on their body stand up.
So this person, he would bring red chili and he would put red chili in his eyes. And then he would cry. And then ये बात चैतन्य महाप्रभु तक पहुंच गई. अब कुछ लोग थे, there were some people sitting there. You know, Chaitanya Mahaprabhu is none other than Krishna. I know some of you are new. कुछ लोग आप नहीं जानते, but Chaitanya Mahaprabhu only 500 years ago मायापुर में भगवान कृष्ण ही थे. श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न ही अन्य. He is none other than Krishna himself. But he appears. So Chaitanya Mahaprabhu, he is the one who started this Sankirtan movement. क्योंकि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम के रूप में ही भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है. तो वो कीर्तन करते थे और ये आदमी आंख में, he would put red chili in his eyes and he would cry. तो चैतन्य महाप्रभु को कुछ लोगों ने कंप्लेंट कर दिया. एंड दे सेड, महाप्रभु ये दम्भ करता है, ये ढोंगी है, ये आंखों में चीनी लगा के, चीनी का पाउडर लगा के रोने की एक्टिंग करता है. तो महाप्रभु ने उसको बुलाया. महाप्रभु ने कहा, ये क्या करते हो तुम? ये तो गलत है, दम्भ तो वर्जित है, पाप है. दम्भ ही हो गया ना, पाप है, ये तुम क्यों करते हो? तो उसने कहा भगवान से कि भगवान, मैं अपनी आंखों को पनिश करता हूं, मैं इनको दंड देता हूं. भगवान ने कहा, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि ये इतनी निष्ठुर है, मेरा हृदय इतना कठोर है भगवान, भगवान का कीर्तन सुन के भी मेरा मन मेल्ट नहीं हो रहा है, मेरा हृदय मेल्ट नहीं हो रहा है और मेरी आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं. सो आई एम पनिशिंग दीज आईज. व्हाई डोंट दे क्राई? नयनम गलद अश्रुधारया. हम लोग शिष्याष्टकम गाते हैं. भगवान वो समय कब आएगा? भगवान चैतन्य महाप्रभु से कहा कि कब इन आंखों से आंसू आने लगेंगे? जब मैं आपका नाम सुनूंगा. हम लोग, आप सब इस स्टेज से गुजरे हैं. कुछ लोग शादीशुदा हैं, कुछ लोग शादी करने वाले हैं, कुछ लोग शादी करके आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए होंगे. यू ऑल रिमेम्बर, शादी से पहले जब पत्नी का नाम सुनते थे तो मन में एक आपके लड्डू फूटने लगते थे, एक इमोशंस नेचुरली आ जाते हैं. तो उसका कारण बस यही है, कितना हमने चिंतन किया है उसके बारे में. The subject that you have thought about, accordingly your body will react. तो यही कह रहा था भगवान से, भगवान मेरी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, आई एम पनिशिंग दीज आईज. व्हाई इट इज? तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने उसको गले से लगाया और जो शिकायत करने गए थे उनको चैतन्य महाप्रभु ने भगा दिया कि कल से तुम्हें कीर्तन में आने की जरूरत नहीं है. तुम लोग यहाँ के ये देखते हो दूसरा क्या कर रहा है. Rather than focusing on your service, you are looking at others, उसकी सर्विस क्या हो रही है. So the point that I'm trying to tell you is, one is भगवान की beauty is unparalleled, but our mood, how do we develop our mood, that is up to us. So that work we have to keep on doing on ourselves. तो भगवान को तो हमने पहले भी देखा है. It is not that you haven't seen the Lord. The scripture says we have seen Krishna many times. It is not now. आप लोग द्वापर में भी आपने जन्म लिया है, सतयुग में भी हमने जन्म लिया है. आप समझ रहे हो? एते ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख योनि ते करय भ्रमण. महाप्रभु कह रहे हैं इस ब्रह्मांड में अनंत जीवगण हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं कि आपने अभी मनुष्य जन्म लिया है. You are also there in Dwapar when Krishna was on this planet. You were also there in Satyug when Bhagwan Vapundev was here. You were also here in Treta Yug when Bhagwan Ram was here. लेकिन हमने वो दृष्टि में दोष था, हमने भगवान को देखा नहीं. और छोड़ो, उस वक्त दुर्योधन ने तो माना ही नहीं ये भगवान है. भगवान सामने थे, उसने नहीं माना. शिशुपाल ने नहीं माना ये भगवान है. तो same is position ours. So the whole point is we have to train ourselves. To understand, आप समझ गए, मैंने आपको दो पर्सपेक्टिव बताया. एक भगवान की सुंदरता, लेकिन ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द, सबको पता है ये, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. कौन देख रहा है? आप क्या देख रहे हो उस विग्रह में? अभी आप, मैं कई बार आपको चैलेंज करता हूं, यहां ऑल्टर है, आप जाते वक्त अपने मन को कह दे, ए मेरे मन, आज मुझे ये देखना लड्डू गोपाल ने आज टोपी किस कलर की पहनी है. याद करके जाओ. आपको ये याद रहेगा मेरी पड़ोसन ने 6 महीने पहले कौन सी साड़ी पहनी थी उसकी शादी में.
आपको 10 साल पहले का याद होगा कि हाँ मैंने देखा था वो लहंगा तुमने पहना हुआ था जब भतीजे की शादी हुई थी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप सबको याददाश्त है उस चीज की। तो प्रभु जी भी मुस्कुरा रहे हैं, आप सबको भी याद होगा। मैं वो टी शर्ट पहन के गया था वहां पे, उसके बर्थडे में ये कपड़ा मैंने पहना था, हमको याद है। राइट, वी ऑल रिमेम्बर दैट। तो द पॉइंट इज, हम लोग किस हद तक अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो प्रचेताओं ने भगवान के दर्शन किए और भगवान ने उनसे कहा आप वर मांगिए, और देन भगवान अब उनसे बात कर रहे हैं। तो भगवान ने कंटिन्यू किया, भगवान ने कहा कि तुमने जिस तरीके से भाइयों ने मिल करके ये मेरी आराधना की है, जो कोई भी शाम को इस प्रसंग को सुनेगा, उन भाइयों में आपस में प्रेम बना रहेगा, या उनके जो भी आसपास होंगे उनका आपस में प्रेम बना रहेगा। Whoever hears this pastime। फिर भगवान कहते हैं कि तुमने रुद्र गीत से मेरी आराधना की है, जो भी इस रुद्र गीत को गाएगा उसको मेरे साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे और उसके सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। अब यहां भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान विष्णु, भगवान शिव के वचन को सार्थक कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा था ना, य एवं श्रद्धाया युक्तो मद गीतम भगवत स्तवम। जो श्रद्धा पूर्वक इस गीत को गाएगा, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्या करेगा वो? अधियानो दुराराध्यम। जो भगवान दुराराध्य है, जिन भगवान को प्लीज करना बहुत मुश्किल होता है, वो भी भगवान की आराधना कर पाएंगे जो इस मंत्र को गाएगा। वही भगवान विष्णु ने रिपीट कर दिया कि जो भी इसको गाएगा उसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से भगवान फिर उनको कहने लगते हैं, और आगे भगवान कंटिन्यू करते हुए कहते हैं उनको कि थोड़ा सा मुझे भी देखने में दिक्कत हो रहा है, आई हैव टू, ओके गुड, ओके। देन भगवान कहते हैं कि आई एम प्लीज विद योर फ्रेंडली रिलेशनशिप। एंड देन भगवान ने उनको बहुत सारे बेनिडिक्शन दिए, भगवान ने उनको बहुत सारे वरदान दिए। भगवान ने कहा कि यूर फेम, तुम लोगों की जो कीर्ति है वो चारों तरफ फैल जाएगी। पीपल विल डिस्कस, दे विल टॉक अबाउट यू, राइट। यू विल हैव अ सुटेबल वाइफ, राइट। यू विल हैव अ सन, आपका एक पुत्र होगा, राइट। अब जहां तक पत्नी की बात, और फिर कहते हैं तुम्हारा जीवन बहुत बड़ा होगा, और फिर उसके अंत में तुम्हें मेरी भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं उनसे कि तुम्हारा जो विवाह होगा, यू विल हैव अ सूटेबल वाइफ, यू विल बी मैरिड टू अ गर्ल कॉल्ड मरीसा। नाउ हु इज मरीसा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मरीसा इज डॉटर ऑफ प्रमलोचा, एंड प्रमलोचा वाज a nymph, अप्सरा थी ये, from heavenly planets. So there was a rishi called Kandu Rishi. He was performing austerity. तपस्या कर रहे थे कंडू ऋषि, और कहते हैं इंद्र को चिंता हो गई, तो इंद्र ने एक अप्सरा भेजी जिनका नाम था प्रमलोचा। एंड शी सेड नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गो एंड डिस्टर्ब हिज तपस्या। आप मेरे साथ में उर्वशी को भी भेज दीजिए, हैं, मेनका को भी भेज दीजिए। बट इंद्र ने कहा नो नो डोंट वरी, आई विल सेंड कामदेव विद यू। और इंद्र कहते हैं, इंद्र ने उनके साथ कामदेव को भेजा, और उन्होंने जाके कंडू ऋषि की तपस्या को भंग कर दिया। दे डिस्टर्ब्ड हिज तपस्या, एंड देन शी वाज एबल टू प्लीज हिम, एंड देन कंडू ऋषि फॉरगॉट एवरीथिंग। वो सब भूल गए जो तपस्या वगैरह कर रहे थे। सुबह का समय था, उन्होंने जैसे ही उस अप्सरा को देखा, वो उसको साथ लेके अपनी झोपड़ी में चले गए, एंड देन ही वाज स्पेंडिंग टाइम विद हर। एंड कहते हैं कि दे वर सो मच एंगेज्ड विद ईच अदर, टाइम वाज फ्लाइंग लाइक एनीथिंग। After 1 year, Pramlocha told Kandu Rishi, now I should go back. And he said, no, 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 please stay for 1 more year. And then she said, I want to go back. Because she did not want to offend him, she stayed there for a very long time. And then one day, Kandu Rishi in the evening, he realized, he just got up and he started running out. And then she said, where are you going? और कंडू ऋषि ने कहा, मेरा संध्या उपासना का टाइम हो गया है, मुझे अपनी संध्या करनी है, इवनिंग पूजा करनी है। अभी देखो टाइम भागा जा रहा है, अभी सारा दिन जाने वाला है। एंड देन शी लुक्ड एट हिम एंड शी सेड, इट्स नॉट जस्ट 1 day, आई हैव बीन हियर फॉर मेनी इयर्स। ही सेड, रियली? एंड देन कंडू ऋषि आस्क्ड हिम फॉर मेनी इयर्स,
And then she says, I've been here for 907 years, 6 months and 3 days. And then Kandu Rishi realized, what have I done? क्योंकि जो भी उन्होंने तप किया था वो सारा उनका खत्म हो गया. He lost all the austerity. He did not curse Pramlocha, because Pramlocha told him, I was sent by Indra, who was envious of you. See, this is another important lesson. It is very difficult to perform your devotional service in isolation. कई बार हम लोग कहते हैं हम अकेले में कर लेंगे, अपना भजन कर लेंगे, क्या जरूरत है भीड़ भाड़ की, राइट? बट आप देखें, अकेले की बात तो दूर रही, हम लोग यहाँ साथ बैठकर भी कई बार साथ नहीं है, राइट? माइंड इज रनिंग हियर एंड देयर, बट व्हेन यू आर अलोन, आपका ध्यान कहाँ कहाँ भागता है. विश्वामित्र जी को मेनका ने वो कर दिया. तो इस तरीके से कंडू ऋषि जब पता लगा कितना समय बीत गया है, एंड कंडू ऋषि ने अपोलोजाइज किया भगवान से, उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने प्रमलोचा का कहा, यू गो बैक. बाय द टाइम प्रमलोचा हैड बिकम प्रेग्नेंट, and as she was going back, she left her daughter. So she was about to give birth to a daughter. She left her daughter in the care of the forest trees की उसमें केयर में छोड़ के चल दी. एंड ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ. एवरीथिंग इज रिटन इन विष्णु पुराण. एग्जैक्ट ईयर, एग्जैक्ट कितना समय बीत गया, सब उनका ये बीच में संवाद हो रहा है. एंड देन Kandu Rishi, he was so upset with himself, he thought, I should now give up my life. मुझे अब सुसाइड कर लेना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए. जब वो ऐसा सोच रहे थे तो कहते फिर एक आकाशवाणी हुई, राइट? और उन्होंने कहा कंडू ऋषि को, डोंट डू दिस, यू शुड गो टू श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र. श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र कहाँ है? जगन्नाथपुरी. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भावा तुम्हें. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भावा तुम्हें. तो जब आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा कि आप श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाइए, वहां पे भगवान श्री जगन्नाथ हैं. यू शुड गो एंड परफॉर्म योर ऑस्टेरिटीज इन श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र. तो अनदर पॉइंट टू नोट, धाम की महिमा है. कई बार हम लोग कह देते हैं जा नहीं सकते, अरे अरे सब जगह भगवान है, बराबर है. यस, कृष्णा इज एवरीवेयर, बट इट इज आवर सिचुएशन प्रोविजन. आर वी एबल टू रियलाइज हिम और नॉट? भगवान तो आपके अंदर भी है, लेकिन जिसने बहाने बनाने बोलते अरे सब बेकार है, भगवान तो सब जगह. यहां भी जाना है, अपॉर्चुनिटी मिले तो धाम में भी जाना है, कहने का मतलब ये. तो वो श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र गए कंडू ऋषि, वहां पे उन्होंने भगवान की आराधना की, उन्होंने तपस्या की. ये विष्णु पुराण में लिखा है, मैं आपको बताऊं. एंड देन फाइनली ही वेंट बैक टू गॉड हेड. फिर भगवत धाम वो चले. अब जो उनकी पुत्री थी, प्रमलोचा की पुत्री मरीसा, तो भगवान ने कहा प्रचेताओं से कि तुम सब, यू आर ऑल ऑफ द गुड नेचर, यू ऑल शुड मैरी Pramlocha's daughter. So they 10 brothers married to one girl. He said, you all married to Marisa, and from Marisa you will have a son. That son will have qualities of Lord Brahma. और वो जो तुम्हारा पुत्र होगा वो संसार में जनसंख्या को बढ़ाएगा. उससे जो फ्रॉम हिम द प्रोजेनी विल इंक्रीज. तो उनके पुत्र कौन हुए? दक्ष प्रजापति. यू नो अबाउट दक्ष पास्ट टाइम, हमने दक्ष प्रजापति का सुना था 4th कैंटो में. उनको बकरे का सिर मिला, he was given the head of a goat. तो कहते हैं then after some time दक्ष प्रजापति left his body, even though he got a goat head, he left his body, and then that same Daksh Prajapati took birth again from the womb of Marisa. In 6th Manvantar, Chakshusha Manvantar, we are in the 7th Manvantar now. In the previous Manvantar, he took birth. And then दक्ष प्रजापति ही इंक्रीज द प्रोजेनी. तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया प्रचेताओं को कि आपको एक बहुत अच्छा पुत्र होगा
आप उस कन्या से विवाह कर लेना। एंड देन द लॉर्ड गिव्स देम कि आप 1 million demigod years you will stay on this planet and you will enjoy all the bhogas. Now the question comes, why are you asking us to stay on this planet? And that to 1 million demigod years. You understand 1 million demigod years कितने होते हैं? 1 demigod day is equal to our 1 year. एक दिव्य दिन हमारा एक साल होता है. 6 month day, 6 month night. That's how the calculation is. And those 1 million years, now you can just calculate. Our calculation, it will be, billion of years. But he said, you will stay and you will enjoy the bhogas of these planets, and then you will come back to me. And after saying this, now the question is, क्या भाई यहाँ पे रहने के लिए भोग क्यों करना है? तो फिर भगवान ने उनको कहा, गृहेष्व अवशिताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मद वार्ता यातयामाम न बंधाय गृहामता. तो भगवान कह रहे हैं कि even if you are staying here, but so now this is an answer to all the grastas, all of you who have family life. भगवान विष्णु खुद कह रहे हैं, लॉर्ड विष्णु is telling them that even if you are griheshva avashitam, even though you are in the grihastha ashram, even though you have a wife, you have children, everything, but if yat yamam, if your day and night are passed by hearing madvarta, by hearing my katha, then it is no binding for you. न बंधाय गृहामता, तो घर आपके लिए बंधन का कारण नहीं बनेगा. So sometimes the point I'm saying is we see somebody, हम बोलते हैं तो बड़ा भक्त बनता है, अरे इसके पास तो इसने पत्नी भी रखी है, इसके बच्चे भी हैं, ये तो बहुत बड़े घर में रहता है, he's driving a nice car, he's wearing these flashy clothes and all. So don't judge anyone by their external exposition. So that is the point I'm trying to make here. Don't judge others. Don't judge anyone. Judge yourself. तो भगवान ने उनको बोल दिया, और यहां पे रहते हुए उन्होंने ये भी बोल दिया कि when you are doing my devotional service, ऐसा क्यों होगा? तो उन्होंने कहा कि जो भगवान को जानते हैं, जो ब्रह्म के ज्ञाता हैं, 90 वद हृदये जगने ब्रह्म एतद ब्रह्मवादी भी न मुयंति न शोचंति न हृष्यंति यतोगता. He is saying, as long as you are hearing these new and new pastimes of Krishna from the people जिन्होंने भगवान की भक्ति की, उनसे तुम नई नई भगवान की अगर कथा सुनोगे, when you hear the pastimes of Krishna, तो आपके हृदय में वो जो भगवान ब्रह्म है, जो भगवान आपके हृदय में, उनकी नई नई छवि, उनके नए नए रूप आपके मन में आएंगे. आप भगवान द्वारकाधीश, भगवान कृष्ण ने द्वारका में जो लीलाएं की, जो हमारे ठाकुर जी वृंदावन में उनकी लीलाएं, मैंने आपको जगन्नाथपुरी बताया. लाइक दिस, एज यू आर एंगेजिंग योरसेल्फ इन हियरिंग दीज पास्ट टाइम्स, तो भगवान कहते हैं न मुह्यंति, यू वोंट बी इल्यूजन, आपको मोह नहीं होगा, आपको पश्चाताप नहीं होगा, लेमेंटेशन नहीं होगा, और आपको जरूर से ज्यादा खुशी भी नहीं होगी, बिकॉज यू आर एंगेज इन हियरिंग दीज पास्ट टाइम्स. अब भगवान ऐसा कह के चुप हो जाते हैं. अब प्रचेताओं को भगवान ने कहा था वर मांगो. अब प्रचेता बोलने लगे. अब प्रचेता बोलने लगे तो कहते हैं गिरा गृणीम गदगदया सुहृततमम. जब उन्होंने उनका ग्रेटेस्ट वेलफेयर भगवान को सामने देखा, और जब भगवान ने बोलना बंद किया, तो उनकी वाणी गदगद हो गई. गदगद हो गई मतलब वो बोल नहीं पा रहे थे, उनका गला रुंध गया. यू हैव एक्सपीरियंस समटाइम व्हेन यू आर इमोशनल, जब व्हेन द टीयर्स कमिंग फ्रॉम द आईज, the throat your gets choked up. तो वही प्रचेताओं की हालत थी. और प्रचेताओं ने फिर भगवान को कहा कि हे भगवान, you are so auspicious, your presence itself destroys everything, and why are you asking us for the boon? Because हृदये अंतो, आप तो सबके हृदय के अंदर हैं. कस्मान ना वेद, फिर आप कैसे नहीं जानते हमारी डिजायर्स क्या है? See, this is a conversation between a bhakt and a Bhagavan. भगवान ने उनको पहले ही कह दिया वर मांगो, पर वो कह रहे when you are inside our अंतर हितो अंतर हृदये,
if you are inside and you are our well-wisher, then kasman न वेद, आप कैसे नहीं जानते हो हमारी डिजायर्स क्या है? हमारी डिजायर तो यही है भगवान, प्रसन्न हो भगवान, हे भगवान आप प्रसन्न हो जाए। भगवान ने फिर भी कहा नहीं नहीं वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, वी हैव गॉट शेल्टर एट योर लोटस फीट, त्वदांग्रि मूलम। उन्होंने कहा जैसे एक मधुमक्खी को पारिजात के वृक्ष पे, पारिजात इज द टॉप मोस्ट ऑफ द ट्रीज, यू नो पारिजात फ्लावर पास टाइम, भगवान कृष्ण सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लेने गए थे। सत्यभामा, माता सत्यभामा जो उनकी रानी थी, उनके लिए स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष लेके आए थे। तो कहते हैं, एनालॉजी दे रहे हैं, व्हेन ए बी, जब एक मधुमक्खी पारिजात के वृक्ष पे बैठ जाती है, देन व्हाट एल्स शी विल लाइक। सिमिलरली दे सेइंग भगवान त्वदांग्रि मूलम आसाद्य साक्षात किम किम वर्णीमहि, हम और क्या वर मांगेंगे आपसे, हमें आपके चरणों की शरण मिल गई है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। लेकिन भगवान ने फिर भी कहा नहीं वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि भगवान अगर हमें वर मांगना है, बिकॉज यू आर अनंत, योर क्वालिटीज आर अनंत, तो हम कुछ अनंत वाला वर मांगते हैं। भगवान ने कहा मांगो मांगो जो मांगना है। तो उन्होंने कहा ठीक है भगवान, बिकॉज यू आर अनंत, योर क्वालिटीज आर अनंत, तो हमारा अनंत का हमारा वर ये मांगना है कि यावत ते माया भ्रमाम इह कर्म भी, जब तक हम इस मृत्यु लोक में, इस संसार में आपकी माया के द्वारा भ्रमित होकर, इल्यूजन बाय योर माया, जब तक हम यहाँ भटक रहे हैं, तब तक हमारी आपसे एक ही डिजायर है। क्या डिजायर है? कि त्वद, आपके जो त्वद प्रसंगा नाम संग स्यातनो भवे भवे, एज मेनी टाइम्स वी टेक बर्थ, जब जब भी हमारा जन्म होगा, बिकॉज दे बीन आस्क्ड टू लिव फॉर 1 मिलियन ईयर्स, सो ही सेड बिकॉज आप अनंत है, आपकी कथा भी अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। So he said, okay, so we ask for an anant boon. Anant means which is never ending. So never ending boon यही है भगवान, जब जब भी हम यहाँ जन्म लेंगे, as many times we take birth here, we should get प्रसंगा नाम संग, जहां जहां आपकी कथाओं की चर्चा हो रही है, wherever people are discussing your pastimes, we get birth in their association. तो भगवान ने कहा अच्छा यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? उन्होंने कहा नहीं नहीं भगवान, इस कथा के सामने, राइट, उन्होंने कहा कि जो तुल्यम लवेन अपि न स्वर्गम न अपुनर्भवम, अपुनर्भव मतलब कंप्लीट लिबरेशन, एंड स्वर्ग इज हेवनली प्लैनेट्स। वो बोलते हैं कि यूर एसोसिएशन भगवत संगी संगस्य, पीपल हु आर डिवोटेड, पीपल हु आर यूर भक्त, उनका संग अगर मिल जाता है भगवान, उनका संग इज नथिंग, एंड दैट एसोसिएशन ऑफ मोमेंटरी एसोसिएशन, इट हैज नो कंपैरिजन टू, स्वर्ग जाने के से भी बहुत बड़ा है आपके भक्तों का 1 सेकंड का संग, कंप्लीट लिबरेशन से भी बड़ा है आपके भक्तों का संग। तो फिर इस मृत्यु लोक में अगर कुछ वरदान मांगना है, किम उताशिष, किसी जो वरदान आप हमें मृत्यु लोक में रहने के लिए दोगे, उसका क्या कंपैरिजन हो सकता है? तो भगवान हमें यही चाहिए। और भगवान ने कहा अच्छा तो इससे क्या होगा? तो उन्होंने कहा आपकी कथा सुनने से तृष्णाया, जितनी भी तृष्णा है, जितनी भी डिजायर्स हैं, जितनी भी एंजाइटी है, जितनी भी एनवियसनेस है, वो सब चला जाता है भगवान। दैट इज व्हाई वी जस्ट वांट टू हियर योर पास। और उन्होंने कहा कि जहां पे आपकी कथा होती है भगवान, वहां पे आप स्वयं आ जाते हैं। यत्र नारायण साक्षात, भगवान न्यासी नाम गति, भगवान हु इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल द लिबरेटेड सोल्स। लेकिन जहां पे आपकी कथा होती है, और कथा कैसे होती है? संस्तूयते सत कथासु, आपकी स्तुति की जाती है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? यू आर ऑल ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम लॉर्ड, you are glorifying by listening, I am glorifying by speaking, so we are all together glorifying। तो वो यही कह रहे कि भगवान संस्तूयते सत कथासु मुक्त संगई पुनः पुनः, again and again when they are discussing your pastimes, they are glorifying your pastimes, my dear Lord, that's what we want। क्योंकि वहां पे नारायण साक्षात आ जाते हैं। आपको क्या लगता है भगवान यहाँ नहीं है? अभी भगवान है, लॉर्ड इज हियर,
क्योंकि उनकी हम कथा कर रहे हैं, कैसे नहीं आएंगे? He has to come. बट ये हमारी दृष्टि है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे आप सोच रहे हैं, आप मान ले यहां ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी हैं यहाँ पर। आपने वो कथा सुनी होगी, वो ब्राह्मण ने अपने बेटे से कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, भगवान को भोग लगा देना। तो लड़के ने भगवान को भोग लगाना शुरू किया, उसने कहा भगवान भोग खाओ। भगवान ने एक दिन नहीं खाया, 2 दिन खाया, लड़का रोने लगा, भगवान आप मेरा भोग क्यों नहीं खा रहे हो? भगवान आ गए, भगवान आ गए और भगवान ने भोग स्वीकार किया। तो कहते हैं जो लड्डू गोपाल की छवि है, जो हाथ में लड्डू है, ये उसी समय से लड्डू गोपाल की छवि बनी कि उनके हाथ में जो लड्डू है। भगवान लड्डू खा रहे थे, क्या हुआ? जब पिता वापस आए, पिता ने कहा बेटे से तूने भोग लगाया है, जा ले आ, थोड़ा सा प्रसाद पा लेते हैं। भगवान को भोग लगा के हम थाली रख देते हैं, फिर उठा के ले आते हैं, चलो प्रसाद पा लेते हैं। थाली उठा के कभी देखा, कभी रोया, अरे आज तुम ठाकुर जी ने एक भी लड्डू नहीं किया, आज तो मेरा खाना टच भी नहीं किया भगवान ने, आज तो भगवान ने देखा भी नहीं। अब जब आप अपने बच्चे का लंच पैक करते हो, बच्चा खाली ले वापस ले आता है, तूने आज कुछ खाया नहीं, देखा? राइट? तो कुछ नहीं तो झूठ मूठी रो लो इनके सामने कि भगवान आज तो आपने टच भी नहीं किया मेरा भोग। कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? तो बच्चे ने ऐसे ही किया, और पिता ने कहा तूने भोग लगाया है, जब भोग लिया। बच्चे ने कहा भोग तो भगवान ने खा लिया। पिता ने कहा बेवकूफ, क्या फालतू की बात कर रहा है, सारा खुद खा गया होगा। दूसरे दिन फिर कहा पिता ने, जब भोग लिया हम तो लिया, कुछ प्रसाद पा लेते हैं। उसने कहा पिताजी भगवान ने आज फिर सब खा लिया। पिता को अब तो गुस्सा आ गया, वो तो अगले दिन मैं छुप के देखूंगा। और कहते हैं कि अगले दिन जैसे ही बेटा भोग लगाने गया, पिता ने छुप के देखा, लड्डू गोपाल जी लड्डू जैसे हाथ में लेके पा रहे थे। जैसे ही पिता ने देखा, भगवान अंतर ध्यान हो गए और ये लड्डू गोपाल जी की छवि बन गई। बोलो बाकी बिहारी लाल की। तो ये भाव जब तक नहीं होगा, इस मूड में जब तक हम लोग भगवान को सर्व नहीं करेंगे, तो वही कह रहे हैं प्रचेता, यत नारायण साक्षात, यहाँ पे साक्षात नारायण भगवान आ जाते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि भगवान ने फिर कहा कि इतना एसोसिएशन क्यों मांग रहे हो? तो प्रचेताओं ने कहा भगवान देखिए, वी गॉट अ मोमेंट्री एसोसिएशन विद भगवान शिव, और भगवान शिव से मोमेंट्री एसोसिएशन का फल ये है अभी साक्षात आपके दर्शन हो गए। राइट? आपने पिछली कथा मैंने बताई, तो उन्होंने कहा भगवान ये है, एक प्योर डिवोटी का संग हमें पाने से इतना बड़ा फल मिल जाता है। और फिर उन्होंने कहा भगवान से कि हे भगवान, बहुत सारे लोग आपकी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी आपकी स्तुति कर रहे हैं, मनु महाराज आपकी स्तुति कर रहे हैं, भगवान शिव आपकी स्तुति कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आपकी स्तुति कर रहे हैं, ऑल दीज ग्रेट पर्सनैलिटीज आर ग्लोरीफाइंग यू, बट अदृष्ट पारा, दे स्टिल कैन नॉट सी यू, they are still not able to see you, but still young Mahimna, but still they are continuing to glorify him. Another lesson, हम लोग सोचते हैं भगवान तो सुन ही नहीं रहे, भगवान नहीं आ रहे हैं। He is giving examples of Lord Brahma, Lord Shiva, 24 घंटे भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हे भगवान, हमने भी जैसी भी हमारे अंदर समझ थी, however we were knowledgeable, राइट, हम लोग राजा के पुत्र हैं, जैसा भी हमसे बन पड़ा हमने आपकी आराधना की। वी ग्लोरीफाइड यू, वी आर नॉट द बेस्ट ऑफ द पोइट्स, वी आर नॉट ग्रेट स्कॉलर्स, बट हाउएवर वी कुड ग्लोरीफाई यू, वी हैव ग्लोरीफाइड यू, राइट? सो प्लीज एक्सेप्ट आवर प्रेयर्स। एंड देन टुडेज वर्स, नमः समाय शुद्धाय, नमः समाय शुद्धाय, पुरुषाय पराय च, पुरुषाय पराय च, वासुदेवाय सत्वाय, वासुदेवाय सत्वाय, तुभ्यं भगवते नमः,
तुभ्यं भगवते नमः। So like this, Prachetas concluded their prayers. हे भगवान, हमसे जैसा बन पड़ा, हमने आपकी स्तुति की, प्लीज आप हमारी प्रेयर्स एक्सेप्ट कीजिए। तो सेम मूड में भगवान भी आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। जिस भी भाव से, जैसे भी आप समय निकाल कर आए, आपने भगवान के इस सत्संग में, इस कथा में पार्टिसिपेट किया, तो आपने भी भगवान को नमस्कार किया। आपने भगवान से यही कहा कि भगवान आप समान हैं, आप शुद्ध हैं, आप वासुदेव हैं, यू आर एवरीवेयर, यू आर ट्रांसेंडेंस, आप सत्वाय हैं। हे भगवान, तुभ्यं भगवते नमः। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो इस तरीके से प्रचेताओं ने अपनी प्रेयर्स की और फिर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए एंड देन प्रचेतास केम आउट बिकॉज दे वर ऑर्डर्ड टू गेट मैरिड। एज दे वर कमिंग आउट, प्रचेताओं ने देखा कि नाउ द ट्रीज ऑन द अर्थ हैड ग्रोन सो टॉल दे वर टचिंग द स्काईज। जो वृक्ष थे आकाश को छू रहे थे। और कहते हैं फिर प्रचेताओं ने रास्ता बनाने के लिए पेड़ों को काटना शुरू किया एंड दे वर वॉमिटिंग फायर एंड एयर फ्रॉम देयर माउथ। उनके मुंह से अग्नि और वायु निकल रही थी, वायु जोर जोर से निकल रही थी और अग्नि उनको वृक्षों को जला रही थी। एज दे वर डूइंग दैट, तो कहते हैं ब्रह्मा जी को डर लगा एंड ब्रह्मा जी कम्स ऑन द स्पॉट। और ब्रह्मा जी ने फिर आके उनसे कहा कि प्लीज आप ऐसा मत करो, क्योंकि योर फादर हैज गॉन फॉर। अभी आपने पिछली कथा सुनी होती तो पिछले में बताया था, जब प्राचीन बरही को ज्ञान हुआ नारद जी से, ही लेफ्ट हिज किंगडम एंड ही वेंट टू परफॉर्म ऑस्टेरिटी। वो तपस्या के लिए चले गए, तो राज्य को संभालने वाला नहीं था और पुत्र यहाँ कर रहे थे, तो बिना राजा के शासन चल रहा था। उन्होंने कहा उस वजह से सब हो गया है, बट नाउ यू आर गोइंग बैक, प्लीज डोंट बर्न दीज ट्रीज। विद द टाइम, समय के साथ इनकी प्रूनिंग हो जाएगी और ये वृक्ष ही तुम्हारी जो पत्नी है उनकी धरोहर, उनके उसमें रखा गया है संरक्षण में। इन देयर प्रोटेक्शन योर वाइफ इज देयर। एंड देन द ट्रीज ब्रॉट दैट गर्ल आउट, मरीसा, एंड ही गेव देम दैट देयर वाइफ टू देम। एंड सो फिर जो राजा के पुत्र थे प्रचेता, वो पत्नी के साथ अपने साम्राज्य में चले जाते हैं और फिर उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। वो कौन था पुत्र? दक्ष ने फिर से जन्म लिया था। तो अब ये यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। अगले चैप्टर में अब प्रचेताओं ने क्या मांगा था भगवान से? हमें एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज चाहिए। अब उन्होंने एसोसिएशन मांगी, तो अगले चैप्टर में अब नारद जी आते हैं प्रचेताओं के पास और नारद जी उनको उपदेश देते हैं और फिर प्रचेताओं की गति कैसे होती है, हाउ दे गो बैक, भगवत धाम को कैसे जाते हैं। अगले चैप्टर में उस कथा के ऊपर चर्चा। अब हम कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की, His Grace वेणु माधव दास प्रभु जी की श्रीला गुरुदेव की जय। ओके। सीमा माता जी, लता माता जी, वरुण प्रभु जी, आप जूम पर हैं तो हम आपको प्रणाम करते हैं। थैंक यू प्रभु जी। आरती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।